ایک مسلمان لڑکی دن رات ہندو نوجوان کے ساتھ زنا میں مشغول رہتی اور والدین کو کہتی کہ میں مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جاتی ہوں۔ ایک رات ہندو لڑکے کے ساتھ گناہ کبیرہ میں مشغول تھی کہ فرشتے نے روح قبض کر لی اور لڑکے نے برہنہ لڑکی کو اپنے صحن میں دفن کر دیا۔ جب والدین نے اپنی بیٹی کی قبر کھدوائی تو لڑکی کی چھاتیوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان لڑکی جو ایک ہندو لڑکے کے پیار میں بہت دیوانی ہو چکی تھی اور اس کے دیوانے پن نے اسے ایک ایسے حرام کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، ایک بت خانے کی پوجا زنا کرنے والی اس لڑکی کا قبر میں واقعہ انجام آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ناظرین، زنا ایک حرام کام ہے اور اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت ہی زیادہ عام سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جس نے آنکھ کھولی ایک مسلم گھرانے میں، لیکن جہاں پر وہ رہتی تھی اس جگہ کافر تھے، ہندو کی بھرمار تھی، اور وہ لڑکی اس جگہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ اس کے گھر والے بہت شریف تھے اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے والد صاحب تو اللہ کے بہت ہی قریب تھے، یعنی مسجد کے امام تھے، لیکن اس کی بیٹی اسلام کو اچھا سمجھتی ہی نہیں تھی اور کہتی کہ دین اسلام میں عورت پر بہت زیادہ جبر اور آزادی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک ایسے دینی گھرانے میں جب وہ پیدا ہوئی تو وہاں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والے، اور اس کی ماں بھی نیک، اس کے والد صاحب نیک، اس کے بہن بھائی بھی اللہ کے بہت قریب، لیکن وہ خود دین اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں پر غیر مسلموں کی بھرمار ہوا کرتی تھی۔ ایک بار اس کی ہندو لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں دین اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ برائی تھی، اور ایک موقع مل گیا اس کو اس بستی میں رہ کر ہندو لڑکے سے دوستی کرنے کا، اور وہ اس طرح کہ ان کے گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان تھا، اور اس کے والد صاحب چاہتے تھے جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیے ہیں، دینی تعلیم حاصل کی، ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ پائے پر علم حاصل کریں اور دین اسلام کو فروغ دیں۔ ان کے گھر میں خاص طور پر عورتوں کو تعلیم دینے کا بہت ہی زیادہ رجحان تھا، لیکن اس تعلیم کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ گھر سے نکلتی ضرور تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ایک ہندو لڑکے سے ہو گئی، جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا، اور وہ لڑکی تو پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی کسی طرح اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے۔ اس نے فوراً اس سے دوستی کر لی، اور اب وہ مدرسے جانے کے بہانے اس غیر مسلم دوست سے ملتی۔ وہ آپس میں قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک بار اس نے کہا، تم تو مسلمان ہو لیکن تم کس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ میں تو غیر مسلم ہوں اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل خلاف یعنی الٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ مذہب چھوڑ دوں، لیکن تمہارے والد صاحب ناراض نہیں ہوں گے تو ان کو کون بتائے گا کہ میں اپنے مذہب سے نکل چکی ہوں۔ اس لڑکے کو تو موقع مل گیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود، یعنی ایک نیک اللہ والے کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ اور کبھی بھی اب نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ خدا کی عبادت کبھی نہیں کرنا۔
इस लड़के ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारी मुलाकात अपने खुदा से करवाता हूँ। एक बुत उसके घर में रखा हुआ था जिसको वो बहुत मानता था। उसने कहा, मैं इनके मानने वाला हूँ, मैं इससे जो मांगता हूँ ये मुझे वो दे देते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अब वो लड़की अपने माँ बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने तो बज़ाहिर मुसलमान बनी रहती, ढोंग नचा रही थी, लेकिन मदरसे जाने के बहाने वो उसके घर चली जाती और वो लड़का वहां बैठकर अपने मजहब के मुतालिक उसे बताता। यहाँ पर घर वालों को झांसे दे रही थी कि मैं इधर से जाती हूँ और वहां पर बहुत देर हो जाती है, आने में अपनी बहनों को भी अपने साथ लेकर नहीं जाती थी, और वो रोज वहां से जाते जाते रास्ता बदल लेती थी और इस लड़के के साथ जाकर जिनाकारी करती। कर्ज के वो गुनाहों की दलदल में इतना डूब चुकी थी, उसे ये भी खबर नहीं थी कि वो अपने आप को तबाह कर रही है। न सिर्फ अपने आप को तबाह कर रही है बल्कि दुनिया और आखिरत भी उसकी बर्बादी की तरफ जा रही है। जहन्नुम के घड़े में खुद को गिराने के लिए तैयार थी, बल्कि गिर ही चुकी थी। वो लड़का उसकी कमजोरी से फायदा उठा रहा था, वो मनमानी उसके साथ करता, वो हर रात उसके साथ गुनाह कबीरा करती, गुनाह कबीरा करके अपने घर जाती। एक बार उसके वालिद साहब को शक हुआ, उन्होंने कहा, बेटी मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अलग मामला पेश आ रहा है, मुझे जरा बताओ कि तुम इधर से जाकर क्या क्या सीखती हो, और अब तुम पाबंदी के साथ मदरसे जाती भी हो और देर से वापस आती हो, बेहतर यही है कि तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। उसने कहा, सच सुनने की ताब ला सकते हैं। अब वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल। उसने कुरान खोले, बगैर कुरान करीम की तवील सूरह मुबारका पूरी पढ़कर सुना दी और कहा, बताइए अब इतनी लंबी सूरत में मैं आपको सुना रही हूँ, इसका मतलब पाबंदी से जाती भी हूँ और रात को देर तक वापस आती हूँ, मैं कुरान को हिफ्ज कर रही हूँ। उसके वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी कोई भी गलत काम नहीं कर रही, बल्कि ये सच में कुरान की तालीम हासिल कर रही है। यहाँ पर आप सब हैरत ज़दा होंगे कि वो लड़की तो उस लड़के के साथ रहती है, फिर कैसे इसने कुरान की इतनी तवील सूरह मुबारक याद कर ली। वो इस तरह कि वो लड़का बहुत चालाक था। उसने कहा कि तुम मेरे पास आती हो, मेरे साथ रहती भी हो, बुत की इबादत भी करती हो, लेकिन तुम्हें अपना कुरान भी पढ़ना है क्योंकि तुम अपने मजहब को पसंद नहीं करती, नाऊज़ु बिल्लाह, लेकिन तुम्हें कुरान को मुकम्मल याद कर लेना है। कभी अगर तुम्हारे वालिद साहब ने तुम पर शक किया और कभी फरमाइश की कुरान पढ़ने जा रही हूँ तो बताओ कौन कौन सी सूरतें याद हैं, तो कुरान की सबसे तवील सूरह सुना देना, वो चुप हो जाएंगे। यही वजह थी कि वो ज़हीन थी और उसे कुरान की वो सूरतें याद थीं जो उसने याद की थी। वो सुना दी। कुरान उसके हल्क से ऊपर तक था, दिल में नहीं उतरा था, इसी वजह से याद तो कर लिया, दिल पर कोई असर ना हुआ। यहाँ पर अपने वालिद को तो उसने चकमा दे दिया, यानी उनके दिमाग को तो घुमा दिया, उनको धोखा दे दिया, लेकिन क्या अल्लाह ताला को वो धोखा दे सकती थी? हरगिज नहीं। मेरा रब तो तन्हाई में गुजरते हुए लम्हात को भी जानता है और लोगों के दरमियान बैठकर जो इंसान सोच रहा होता है तब ही इस बात को जानता है। एक रात जब वो गुनाहों की दलदल में गिरी हुई थी और गहरी खाई में गिरती जा रही थी, बरहना हालत में थी, उस लड़के के साथ पूजा करने के बाद जब वो आराम से उसके साथ जिनाहे कबीरा कर रही थी, उसी वक्त मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह कब्ज कर लिया। मौत ये नहीं देखती कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा है या कमसन बच्चा है, बस अपने वक्त पर आती है। इसलिए इंसान अच्छी हालत में इस दुनिया से जाए, क्योंकि इसके बाद तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बरहना हालत में बंद कमरे में इस हिंदू लड़के के साथ वो मौत के मुंह में जा चुकी थी। वो हिंदू लड़का इस लड़की की अचानक मौत पर बहुत परेशान हुआ, उसको बाहर ला ना सकता था, किसी से इसका जिक्र नहीं कर सकता था। उसको समझ न आया तो घर के सहन में इस लड़की की बरहना लाश को फेंक दिया, यानी कपड़े से लपेटा भी नहीं, इस आलम में उसने इसके सहन में इस लाश को फेंक दिया, इस जमीन को बंद कर दिया। उधर उस लड़की के वालिदैन सरापा हैरत बने हुए थे
परेशान थे कि बेटी आ तो जाती है, बेशक रात को देर तक आती है, लेकिन अब तक क्यों नहीं आई। वालिद साहब ने वालदा को इत्मीनान दिलाया और करीबी मदरसे पहुंचे और वहां जाकर मालूमात की तो पता चला वो लड़की तो 1 महीने से मदरसे आ ही नहीं रही। ये खबर सुन के बाप ने सिपाहियों को इतला दी। सिपाही पूरे मोहल्ले में इस लड़की की तलाश करते रहे। आखिरकार वहां पर हिंदू की बस्ती के पास भी जा पहुंचे और तमाम हिंदुओं से पूछा तो वो कहने लगे इस तरह की कोई लड़की हमारे पास नहीं आई। वो लड़का इसी बस्ती में रहता था। उसके घर का दरवाज़ा भी खटखटाया गया। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो उसने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने पर वो लड़का बहुत ही घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। जब सिपाहियों को शक हो गया, उन्होंने कहा हमें लगता है कि आपकी बेटी यहीं पर है। बाप ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये गैर मुस्लिम है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी बेटी मुसलमान है, एक हिंदू के घर में वो क्या करेगी। देखें कुछ खबर नहीं, हो सकता है आपकी बेटी अंदर हो। उस लड़के को एक तरफ हटाकर जब घर में दाखिल हुए तो वहां कोई भी नहीं था। उस लड़के से पूछ हुई, कहा बताओ कहाँ है वो लड़की और तुमने इसे मार कर कहाँ फेंका है। उसने कहा मैंने इसे नहीं मारा, वो तो खुद ही मर गई। उस लड़के ने अपने आप को बचाने के लिए सच कह दिया था, लेकिन सिपाहियों ने कहा कि अगर वो लड़की इसी घर में है तो कहाँ पर उसे फेंका है। वो घर के सहन में मैंने इसे डाल दिया है। सिपाहियों ने जब उस लड़की की वजह से सहन खोदना शुरू कर दिया, गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था। सामने जो मजहर साहब ने देखा, इस मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके जिस्म पर न कफन था न ही कोई कपड़ा था, जबकि उस लड़की के पोशीदा छुपे हुए आज़ा मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके थे और न ही उसके जिस्म को लपेटा हुआ था एक बहुत बड़े सांप ने, जिसकी जबान बाहर लटकी हुई थी और उसकी जबान पर वो सांप बार बार डस रहा था। फिर एक बिच्छू चलता हुआ आया और उसके जिस्म को काटने लगा। वो मंजर सब देख रहे थे। ये वो अजाब था जो इस लड़की पर जिना के गुनाह की वजह से आया था। शरीफ और बाहया मर्द और औरत तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो तो एक ऐसे दीनी घराने से ताल्लुक रखती थी। अब वालिद साहब अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तड़प कर रह गए और वो जानते थे कि वो इस जगह से नहीं निकल सकती। मजबूरन उसी जगह उसके जिस्म पर कपड़ा डाल दिया गया। वो सांप उसे छोड़ भी नहीं रहा था। कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खा रहे थे। इस जगह इसे दफना दिया गया। आज भी इस हिंदू लड़के के घर में उसकी कब्र मौजूद है, लेकिन चीखों की आवाज आती है और चीख चीख कर कह रही होती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस गुनाह से जो मैंने किया है। इस गुनाह की सजा मुझे रोज मिलती है। मैंने झूठ बोला, मेरे इस्लाम को बदनाम किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। उस लड़के को सिपाही पकड़ कर ले गए थे। गो कि उसने इसे नहीं मारा था, लेकिन फिर भी उसने इसको बहकाया था। वो अजाब जिसकी सज़ा वो मरने के बाद भी भुगत रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान की एक शाख है। वो हया है, उस किस्म के गुनाहों से इन गुनाहों के अजाब से बचा लेती है। हर इंसान के दूसरे इंसान से एक पर्दा है, लेकिन इंसान अखलाकियात से गिर जाता है। वो समझता है इस्लाम में ये सब बातें हमें हमारी आज़ादी से रोकती हैं। आज़ादी ये नहीं कि आप किसी गैर महरम के साथ नाजायज ताल्लुकात रखें। अगर इस्लाम में औरत को बापर्दा होने का हुक्म दिया गया है तो ये उसकी हिफाजत के लिए है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाह कबीरा से बचाए, आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें।